लखनऊ के मलिहाबाद के आमों का विदेश में बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। देश के दूसरे राज्यों में भी यहाँ के आमों की मांग अन्य क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा रहती है। हालांकि इस बार आम की फसल को भी बेहद नुकसान हुआ है। बता दें, मैंगो मैन के नाम से मशहूर कलीमुल्ला के मुताबिक पिछले 80 सालों में राज्य में इतनी कम पैदावार नहीं देखी। दरअसल उनका कहना है कि इस बार आंधी और पानी ने आम की फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। वैसे तो पहले ही आम की फसल में फूल ज्यादा आने की वजह से आम के बोर कम आए, लेकिन बारिश और आंधी की वजह से बाकी बचे आम भी गिर गए। इसके अलावा गर्मी ज्यादा होने की वजह से आम समय से पहले ही पक गए, जिससे काफी आम खराब हो गए। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। डॉक्टर राजेश शर्मा, टेक्निकल मैनेजर फर्टी ग्लोबल, और तनवीर आलम, कंट्री मैनेजर फर्टी ग्लोबल ने कृषि जागरण मीडिया हाउस का दौरा किया और कृषि जागरण के एडिटर इन चीफ MC डोमिनिक और डायरेक्टर शाइनी डोमिनिक से मुलाकात की। तो वहीं इस नोट पर डॉक्टर राजेश शर्मा, टेक्निकल मैनेजर फर्टी ग्लोबल ने पौधे के लिए महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व के बारे में बात कर क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। When you learn about Ferti Global, which is a part of 200 years old group of Italy, named as SCL Italia. The group incepted in 1818. So when activities in India started in 2018, it was exactly 200 years of establishment of that group. And the very first person who seeded the activity in India, Mr. Tanveer Alam, and I joined the company in 2019. It looks like in a very short span what may be the achievement so far, and where in between 2 years completely devastated by the pandemic. We all suffered from that. You know better because NCR region was the center point for that. But luckily we learned a lot from that tough time, and today I am very happy to announce that our activities are in 14 states of India. Coming to the support to Indian farming community, what we are doing, because there are n number of companies supporting Indian farming community. Every product is important, every input to the farmer which enables them to produce more good quality is important. So what exactly new we are doing? We are providing them a very important health aspect, that is micronutrient nutrition for the farmers, which is untouched or farmers are not so aware. I understand that all of us are from agriculture background. If not, then we are practically agriculture background. साथ ही तनवीर आलम, कंट्री मैनेजर फर्टी ग्लोबल, ने पौधे के संबंध में अपने विचार साझा किए। First of all, I would like to say, luckily, and I am feeling very proud that we are working in agriculture sector. And you must be knowing that the importance of agriculture in last 2 years of the pandemic, because when everyone was struggling for their day-to-day life in that time of pandemic, we were the agriculturists. We were the people who was having something different and who was feeding the world in this tough time. Okay, and this moment gave us the more feeling of goodness and proud. And secondly, I would like to say, out of this big world of agriculture, we are in the segment where farmers are not so much of aware of that industry, which is Dr. Rajesh had mentioned that farmers still is willing to know the importance of micronutrient. And there are many industries, there are many companies working in this way. Even the government is also focusing in that way, that farmers must be knowing about the nutritional specialty and their roles and specification about this day-to-day conventional farming. Because India is the largest country, we can say, out after China, where farmers are producing more, but the produce is not so much of qualitative, and that quality must be
so good as we can be able to export these goods out of the India. चौथे फ्रेश इंडिया शो 2022 नई दिल्ली में 3 से 4 जून को वेलकम होटल द्वारका में आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम का आयोजन मीडिया टुडे ग्रुप द्वारा किया गया है। दरअसल फ्रेश इंडिया शो 2022 में फ्रेश इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शनी, नेटवर्किंग मीट और पुरस्कार शामिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में F&B इंडस्ट्री को मजबूत करने के साथ दुनिया भर की फर्मों को जोड़ना है। वहीं कृषि व्यवसाय के संचालन के साथ वैश्विक प्रति व्यक्ति उपलब्धता, खपत और मांग के तरीके में भी सुधार करेगा। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में कृषि जागरण मीडिया पार्टनर के तौर पे मौजूद रहा। गुजरात के वडोदरा नांदेसरी इंडस्ट्रियल एरिया के दीपक नाइट्राइट्स केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के एक भाग में भीषण आग लग गई। दरअसल इस पूरे मामले को लेकर वडोदरा कलेक्टर RB ब्राडा ने कहा कि भीषण आग पर काबू पाने के प्रयास जारी हैं और घायल हुए 7 श्रमिकों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। वहीं लगभग 700 लोग जो इंडस्ट्री के आसपास रहते हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। महाराष्ट्र के किसानों को जहां एक तरफ राहत की खबर मिली थी, वहीं अब एक ऐसी खबर सामने आ रही है कि राज्य में प्याज के फिर से सही भाव नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि अगर ऐसे ही प्याज बाजार में 1 से लेकर 5 से 6 रुपए में बिकता रहा तो वह इसकी खेती छोड़कर दूसरी फसलों को अपना लेंगे, जिससे उपभोक्ताओं को काफी घाटा होगा। जिसको देखते हुए महाराष्ट्र के कांदा उत्पादक संगठन के अध्यक्ष भारत दिघोले का कहना है कि अगर महाराष्ट्र में प्याज उत्पादन कम हुआ तो देश में प्याज इंपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे भाव में भारी वृद्धि होने के कारण ये 200 रुपए तक पहुंच जाएगा। जून के महीने में मोदी सरकार देश के गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार गन्ने का उचित और मूल्य बढ़ाने की तैयारियां कर रही है। इसी संबंध में मोदी सरकार द्वारा एक कैबिनेट नोट जारी किया गया, जिसके अनुसार केंद्र सरकार गन्ने का FRP 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने जा रही है, जिसका मतलब गन्ने का FRP बढ़कर 305 रुपए हो जाएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंट एक्सपो वी 2022 का आयोजन 4 से 5 जून को प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण प्रौद्योगिकी और उपकरण निर्माताओं के लिए दुनिया भर में नए व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए एक B2B व्यापार मंच प्रदान करना है। दरअसल ये आयोजन उद्योग के साथ नेटवर्क बनाने का एक शानदार अवसर बनेगा। वहीं आपको बता दें, कृषि जागरण की टीम इस कार्यक्रम में मीडिया पार्टनर के तौर पर उपस्थित रहेगी। आंधी और बारिश का दौर थमते ही दिल्ली में गर्मी का कहर एक बार फिर लौटने लगा है। आपको बता दें, कुछ जगहों पर तापमान 44 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है। वहीं मौसम विभाग का पूर्व अनुमान है कि आगामी 3 से 7 जून के बीच अधिकतम तापमान 42 से 43 डिग्री रहने की संभावना है और न्यूनतम तापमान 27 से 28 डिग्री रहने के आसार है। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।